So hi guys, I hope I'm audible. Today we'll start with a rather than very important concept of theories of international law. You have to I feel that you can expect a question from this in UPSC law optional and 100% in university law exams. Law exams. So it's rather than that, it's a very important prospect to understand from what substances we have taken international law. Right. So the first prospect which we look into is the naturalist theory. Here it is written, the naturalist theory. So also again, please avoid the mess which is written in front of you. Try to hear and then connect with your brain what I'm trying to tell. That is the most important thing here. So there are majorly four thinkers: Francisco Victoria, plus Suarez, then Mr. Pufendorf, and then Mr. Hugo Grotius. Right. So we'll start with Francisco Victoria as well as Mr. Suarez, who said, they can't say a thing now, they're dead. So they say that natural laws are basically divine laws. Divine law are basically derived from a theology, and there is no reason behind it. No reason is the most important part here. No reason behind it. Right. So डिवाइन लॉ और थियोलॉजी में अंतर क्या है हमें ये देखना है. ठीक है. एट द एंड थियोलॉजी एंड divinity can be somewhat interchanged. Some could argue. I'm not talking about the English literature enthusiasts, but it is important to understand that. Just a second. It is important to understand that in this context it is different, because at that time divine law and theology were somewhat parallel to each other, because in divine law, of course, the concept of God into play, but it was talking about some other entity which was not present on earth. In theology, the theological background will arise from which place? It will arise from the already written texts which was present there at a particular moment of time at their ages, right? तो इनके टेक्स्ट थे ऑलरेडी, और डिविनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा था कि कोई एक ऐसी भारी शक्ति है जो हमें लिखने पे मजबूर कर रही है, थियोलॉजी जो लिखी जा रही है, और उसका कोई रीज़न नहीं है. इनका कहने का मतलब ये था. ठीक है. और इस वजह से the concept of one of the most important concepts of natural justice came into play, which was no man should be condemned unheard, but according to them everything is divine. For example, अगर कोई डिवाइन चीज़ कहती कि अगर कोई आदमी कंडेम हो सकता है अनहर्ड, तो उसको कंडेम कर दिया जाता. कहने का मतलब ये है. ठीक है. इन्होंने नेचुरल लॉ की बात करी है यहाँ पे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा. यहाँ पे फिर आए पुफेंडॉर्फ जी, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ एंड नेचुरल लॉ आर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी. कि इंटरनेशनल लॉ और नेचुरल लॉ में कुछ फ़र्क नहीं है, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम. एंड सो इंटरनेशनल और नेचुरल लॉ का फ़र्क भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ. ठीक है. IL NL. IL again, laws between states, right? Natural law are somewhat these adjacent laws for divine laws.
ठीक है, मैंने लिख दिया था डिवाइन ऑलरेडी, लेकिन डिवाइन लॉज के एडजेसेंट जो भी चीज़ है वो नेचुरल लॉज में आएगा उस समय के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ इंसान ने बोल दिया जो डिवाइन, जिसको लोग डिवाइन मानते हैं, नॉट द म्यूजिशियन डिवाइन ऑफ कोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंकर्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, जिनको माना जाता था उस समय। ठीक है, उन्होंने कुछ कह दिया और स्टेट ने उसे सॉवरेन लॉ भी मान लिया। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉ माना जाएगा कि ये नेचुरली स्टेट में अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पुफेनडॉर्फ साहब ये कहते हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, और नेचुरल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, यू नो, वन लीड्स टू दी अनदर। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको +1 आप मान के चलिए। ठीक है, अगर आपका टीचर पढ़ रहा होगा आंसर तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है ह्यूगो ग्रोशियस साहब। ह्यूगो ग्रोशियस साहब ने किताब तो लिखी थी, कौन सी किताब लिखी थी आप लोग कमेंट में लिखिए, ये आपका एक्टिव रिकॉल हो रहा है। ठीक है, फॉर नेचुरल लॉ टू सर्वाइव यू हैव टू यूज डिवाइन लॉ प्लस रीज़न और थियोलॉजी प्लस रीज़न। तो मेजर डिफरेंशिएशन कहाँ क्रिएट हुआ कि इन महाशय ने रीज़न डाल दिया, जो इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि जहाँ रीज़न आएगा, क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखिए कि उस वक्त यूरोप में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रेडिकल नेशनलिज्म था और लोग कंजर्वेटिव थे और साथ साथ रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा थे। तो रेडिकल रिलीजियसनेस जब हो जाती है ना, तब रीज़न ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, लेट मी चेंज, यस, whenever there is radical religiousness, the state will lead towards death of reason. I think it is one of the most important things which we all need to understand, right? I think it's a great start for some of your answers if you want to. So yes, so reason was there, the concept of ex equo et bono ये कॉन्सेप्ट आपके जब हम GPL का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, आपको आर्टिकल 38 पढ़ाएंगे ऐसी जगह, और सोर्सेज ऑफ IL बताएंगे, तब आपको मैं ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि मैंने एक शब्द का यूज़ किया है जिसका नाम है एक्स एक्यो एथ बोनो। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा दूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम मिस्टर ग्रोशियस डिवाइन लॉ इज़ नॉन डेरोगेबल। अगेन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ नॉन डेरोगेबल कब होती है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन COI FRR नॉन डेग्रेडेबल। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35, दे आर नॉन डेरोगेबल अपार्ट फ्रॉम सर्टेन इंस्टेंसेज इन रिस्पेक्ट टू इमरजेंसीज। वो अगेन अब कॉन्स्टिट्यूशन की जब क्लासेस लूँगा मैं तब आपको वो समझाऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ठीक है, जस्ट नेचुरल की उन्होंने बात करी थी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम डिवाइन थ्योरी। ये डिवाइन लॉ को ज़्यादा मानते थे, थियोलॉजी और डिवाइन लॉ को, जो जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी ना, यहाँ पे हमने बात करी थी, तो इसको ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देन केम द सॉवरेन थ्योरी। इन सॉवरेन थ्योरी one of the major thinker was Mr. John Borden. He said that state is sovereign and it is the supreme legislator. तो मतलब इन्होंने स्टेट को सबसे ऊपर मान लिया। ठीक है, स्पेक्ट्रम देखिए, पहले कौन सा आया? नेचुरलिस्ट, उसके बाद आया सॉवरेन, स्टेट वाले सबसे ऊपर होंगे। ठीक है, यहाँ पे थियोलॉजी की बात करी थी। ठीक है, और इसके बाद क्या आएंगे? फिर आएंगे पॉजिटिविस्ट्स।
right? So state is not bound by its own laws. You have to remember that. Loss. अगर स्टेट की कोई भी एक्सचेकर या मशीनरी का लॉस होगा तो वो बाउंड नहीं होगा. कोई स्टेट की वजह से मरेगा तो वो माना नहीं जाएगा. समझ रही है? मतलब एक ऑटोक्रेटिक चीज़ की बात हो जाती है यहाँ पे देखा जाए तो. अगर हम इसको रिलेट करें ऑटोक्रेसी से तो स्टेट इज़ बाउंड एंड आंसरेबल टू डिवाइन लॉ. यस, पर यहाँ पे अगेन तो डिविनिटी कहीं ना कहीं आ ही जाती है क्योंकि उस वक्त थियोलॉजी सर्वोपरि थी, सबसे ऊपर थी. इट वॉज एट द पीक. राइट, देन केम द पॉजिटिविस्ट थ्योरी. राइट, आर्टिकल 38 ICG के बाद मैं पढ़ाऊंगा ये आप लोगों को. द स्टेट इज द एब्सोल्यूट रियलिटी हैविंग इट्स ओन इनहेरेंट वैल्यू. इट हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन. ठीक है, स्टेट हैज़ कंप्लीट सॉवरेनिटी and authority. Therefore, from the above point, it becomes clear that IL should only be seen through the lens of state practice manifested through treaties, customs to which states have consented, and not to esoteric concepts like natural law. ठीक है, 3 थिंकर थे यहाँ पे, इनको आप लिख लीजिएगा. ठीक है, एल्बरिको जेंटली, मिस्टर जाउचे एंड बिंकर शॉइक. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि बोला क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है. यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है कि देखिए, रीज़न लाइए. पहली बात तो रीज़न लाइए. ठीक है, अगर 2 स्टेट के बीच में कोई लॉ है, ठीक है, तो वो उन 2 स्टेट की ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, MOU या एग्रीमेंट्स ही डिसाइड कराएंगे. ठीक है, कोई ऊपर से आके भगवान आके ये नहीं बताएगा कि 2 स्टेट्स के बीच में ट्रेड किस तरीके से होनी चाहिए. दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ पॉजिटिविस्ट थ्योरी. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट. राइट, सो ऑल ऑफ दीज 3 jurists gave importance to state practices and virtually ignored, that's what I said above, they virtually ignored natural law. Understood? They all ignored virtual law. As I said here, that they have ignored natural law. They have said that they have argued that international law, if mixed with natural law, will lead to confusion. The only way to understand and appreciate international law is through analysis of state practices, which is reflected through treaties, customs, etc. यही जो मैंने आपको ऊपर बताया है. ठीक है, ये this was the norm here. Then Mr. Vattel came, the Imarde Vattel. We have to fuse between natural law and state-made law. वो कह रहे थे कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. लिखना है आप लिख सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आंसर में नहीं याद रहती हैं ये सब चीज़ें. देन केम विच इज़ which is of recent application as well, new approach to international law. Earlier there were only 2 prospects, natural law and state practices, but it is also important to know the behavior of state, which includes anthropology, sociology, psychology, to predict the international order. ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है कवि. कवि ये कहना चाह रहा है कि यार नेचुरल लॉ और स्टेट प्रैक्टिसेस से ऊपर उठना होगा. ठीक है, स्टेट प्रैक्टिसेस से ऊपर उठना पड़ेगा. हमें इम्पोर्टेंस देनी है कि उस समय हमारे स्टेट में किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, इफ़ यू नो द नीड्स, वी विल बी एबल टू नो द वांट्स, एंड इवेंचुअली स्टेट शुड मेक laws on wants. Right, thank you. So this is it. एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो रही नहीं RIP. ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में मतभेद था, द I don't know, it was a soft war between India and Pakistan in respect to water, and eventually it came into halt. The war came into halt due to this treaty, and now post the attacks in Pahalgam, this is not present.
nature and scope of international law. Now, this is the next topic which we'll do in the next video. Thank you if you have watched it till here, and if you're liking it, please share it with your friends in law schools, other aspirants, right? And if you like it, please like, share, and subscribe. Thank you, guys.